evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, which topic we can cover today? Articles. Okay, ma'am. Ma'am, can we do tenses? I will make Ma'am, good evening. Good evening. Today we Good are having evening. a combined class of Group A and Group B. So you people have done partial tenses, but I have not done it with Group B. So it is not possible for me to start a topic which has been done incomplete with you. So first, to bring them to that level, I have to do something which I can do with both the groups. So that's why we will do articles today. It's a very easy topic, very simple. We require it in writing, reading, and speaking. Yes. Am I can't understand? रणबीर बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दो। मैम आप फिर से बताना, आप क्या कह रही थी? मैं तो अभी भी इंग्लिश में ही बताऊंगी मैं क्या कह रही थी। आप ध्यान से सुनो ना, आपका ध्यान बोलने में आपकी वॉइस नहीं क्लियर थी मैम पहले। आपका ध्यान बोलने में रहता है, सुनने में नहीं रहता। बी अ गुड लिसनर, it is very important. I have already taught you people that listening is very important in life. I said I am taking a combined class of Group A and Group B. Although I have completed a few tenses with Group A, I have not started it with Group B. So it is not possible for me to continue with tenses today because it is a combined class. So we will do a small topic of articles, which is a very important topic. We require the use of articles in day-to-day speaking, in our spoken language, in writing and reading as well. किसी को कुछ कहना है तो raise your hand. Nobody will speak in between. If you want to speak, you will raise your hand and then speak. Yes, this is a combined class for Group A and Group B. Ma'am. Ma'am. Ma'am, you are muted. I'm just waiting for everyone to join the class. A few students are joining the class and leaving the class. So I'm just waiting everyone to join the class so that I can start the topic. Yes. मैम कल हमारी ना क्लास नहीं लग पाई थी। मैम कल आपने क्या करवाया था? आप ग्रुप ए में हो या ग्रुप बी में? रणजी ग्रुप ए में हो या ग्रुप बी में हो? मैम ग्रुप बी। कल मैंने इंट्रोडक्शन कराई थी और नहीं कुछ कराया था। मैम आज इंट्रोडक्शन बता दो फिर एक बार। नहीं, इंट्रोडक्शन मैंने नहीं बताई थी बेटा, इंट्रोडक्शन तो आपने बताई थी अपनी। मुझे सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन दी थी अपनी कि आपका क्या नाम है। वो मैं आपसे कल ले लूंगी आपकी इंट्रोडक्शन। अभी हम आर्टिकल्स करेंगे, ठीक है? मैम आपने नहीं दी अपनी इंट्रोडक्शन? नहीं, मैंने नहीं दी अपनी इंट्रोडक्शन। मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी आपको कल दूंगी। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, इतना बहुत आपके लिए, ठीक है ना?
मैम कल बता देना अपनी इंट्रोडक्शन। Of you who have joined from Group B, my name is Neha and I am going to take your English classes, particularly English grammar. Literature will be taken by another faculty member, Ms. Jyoti, who will be joining soon. Nobody will write on the board. Yes, ma'am. Okay, so we will start with articles. First, we need to know what is an article. Raise your hands who can tell me what is an article. Okay, I see 3 hands. Yes, yes, Pranav. मैम हिंदी में बता सकते हैं डेफिनेशन? बता दो। मैम आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हमने ए एन एंड द लगाना होता है। मैम एन हम वहां पर लगाते हैं जहां पर वोवल्स होते हैं, जैसे ए आई ई ओ यू। गुड। यस दिव्यांशु, आप बताओ। मैम हाँ जी। आर्टिकल मैम नाउन को वो करते हैं मैम, डिफाइन। आर्टिकल नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोनाउन होते हैं। नो मैम, मतलब मैम कैन आई टेल? यस मे आई टेल? यस अनन्या, यस अनन्या, you tell. मैम मे आई टेल? Yes, ma'am. Just a Ma'am, second. articles are Yes, ma'am, continue. A and the are three are known as articles. मैम ए एन उसके साथ लगते हैं जहाँ पर वोवल्स की साउंड होती है, जैसे ए ई आई ओ यू एस। और जो दा है वो जैसे किसी स्पेसिफिक चीज के साइड पर लगता है। और ये नाउन की जैसे सिंगुलर नाउन को भी जैसे डिफाइन मतलब कि बताते हैं कि नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ए और एन। हाँ दिव्यांशु, आप कह रहे थे नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन को डिफाइन नहीं करते, वो ये बताते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके ओके मैम। आर्टिकल्स हेल्प अस टू इंडिकेट मैम पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स। मुझे सुन लो। आपको बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। मैं लिख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, यू विल लिसन टू मी ना। अगर आप सभी बताते रहोगे, जब मैं पूछती हूँ तब सिर्फ 4 बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमें बताना है। जब 4 बता देते हैं तब सबको बताना होता है। फिर तो मैं पूरी क्लास के एंड तक सिर्फ आप लोगों की डेफिनेशन सुनूंगी। जब मैं पूछती हूँ तब आंसर किया करो। ओके, ताकि आप लोग क्विक कहो। नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहेगा कि अगर मुझे आंसर करना है तो मुझे इमीडिएटली हैंड रेज करना है। There are 2 types of articles. Why 2 type? Because it will either be a, either be an, or it will be the. So there are defined and indefined. There are 2 types of articles, and the number of articles are 3: a, an, and the. मैम आर्टिकल की टाइप से 2 होती हैं और उसके नंबर 3 होते हैं। बच्चे टाइप तो 2 ही होती हैं, ए या एन लगेगा या दी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं काउंट करूं ए, एन और द, तो ये कितने हैं? 3 है ना मैम? जी यस मैम। पर टाइप तो 2 ही हुए ना, क्योंकि ए और एन सेम जगह पे ही लगते हैं। ओके मैम।
मैम ए और एन दोनों सेम जगह पे लगते हैं। बच्चे सेम जगह पे इस तरह से लगते हैं। एन एप्पल अ मैंगो, सिंगुलर हो गया ना। मैम द डिफाइंड करते थे क्वांटिटी मैम, और ए और एन डिफाइंड। हाँ नहीं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? ए और नाउन ए और एन लगेगा। Ma'am, I have a doubt. यस Ma'am, but A is used before. consonants and an is used before the words which Ma'am, give us a vowel yes. sound. Yes, ma'am. So that's why, Absolutely ma'am, right. these are different. Yes. Ma'am, but you can write here 2 types of articles. I have written 2 types only. I have not written 3 types. मैम There is a ए और secret एन to के it. बारे में मैं फिर I will, बता I दो will कि tell ए you कहाँ why पे I है। have written 2. I will tell you if you will let me write that why I have written 2. Because a and an is an indefinite article and the is a definite article. मैम ए और एन का बारे में हाँ, ए और एन के बारे में बताती हूँ मैं, सुनो। 2 टाइप के आर्टिकल्स जो होते हैं वो समझाने के लिए लिखा था। फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के आगे 2 टाइप होते हैं। वन होता है ए, सेकंड होता है एन। ओके मैम ए और एन का यूज कहाँ होता है मैम वो तो बताओ दो। बच्चे, मैं एक लाइन में तो सब कुछ नहीं बता सकती, एक एक करके बताऊंगी। मैं लिख भी रही हूँ साथ में, सबको समझ भी आना चाहिए साथ साथ। बहुत सारे बच्चों के नेटवर्क में इश्यू है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ताकि अगर उनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो वो नोट कर लें। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको बता रही हूँ कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल द है, तो मैं आगे ये भी बताऊंगी कि वो कहाँ यूज होता है। ऐसे थोड़ी ना मैं आपको कहूंगी कि आप खुद जाके पढ़ लेना कि वो कहाँ पे यूज होता है। थोड़ी पेशेंस रखा करो बच्चों। ओके ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी। यस मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मैम ए और एन मैम अलग अलग क्यों किए हैं मैम, वोवल और कॉन्सोनेंट्स के साथ में? मैंने और वोवल और इसको कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग तो किए नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना नहीं बताया मैम, है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल द है। अ कॉन्सोनेंट के साथ लगता है और एन वोवल की साउंड के साथ लगता है। इसके अलावा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। मैम मैम कौन सा वही आपको वो पढ़ना है जो मैं नहीं पढ़ा रही दिव्यांशु। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द क्लास। मैम कॉन्सोनेंट क्या होता है? बताऊंगी बेटा। कॉन्सोनेंट वो होता है जो साउंड होती है, जैसे वोवल साउंड होती है ना, ए ई आई ओ यू, ये वाले वर्ड की जो साउंड होती है वो वोवल साउंड होती है। इसके अलावा जो अल्फाबेट्स की साउंड होती है, जैसे कि म श ट, ये सारे जो होते हैं, ये वाली साउंड जो होती है ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मैम जिसमें वोवल्स की साउंड और बाकी अल्फाबेट्स की साउंड भी आती है। कैसे आप बताओ? मैम आपने कहा ना कि ए मतलब कॉन्सोनेंट होता है कि जिसमें नहीं वोवल्स बच्चे नहीं, ए ए कॉन्सोनेंट नहीं होता। ए कॉन्सोनेंट के साथ ही यूज होता है। ए तो मैम वोवल जी मैं साउंड वो होती है लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। अब आप लोग मेरी बात सुनना ध्यान से। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स क्या होते हैं पहले वो सुनो, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं सबको पता है, ए ई आई ओ यू, राइट। ये सबको पता है ये वोवल है। यस नहीं पता? यहाँ पे वर्ड लिखती हूँ यूनिवर्सिटी। Ma'am, U is a vowel. U is a vowel, Yes, ma'am. but the sound The word is not. but the word university, मैम ए लगेगा। हाँ ए लगेगा या द लगेगा? इसमें द लगेगा। अ लगेगा या द लगेगा? द यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि जो य की साउंड है दैट इज नॉट अ वोवल साउंड। वोवल साउंड होती है उ ओ ई आई ए। जो भी साउंड्स आप अपनी टंग पकड़ के बोल सकते हो
वो सारी साउंड्स वोवल साउंड्स होती हैं। सब अपने आप को म्यूट पे करेंगे। होल्ड योर टंग एंड ट्राई टू स्पीक A, E, I, O and U. You will be able to speak. And tell me which alphabet you are not able to speak while holding your tongue. Ma'am, I will try it. No, all of you have to try right now. Ma'am, I tried. Ma'am, I tried. I tried. Ma'am, I tried. Okay. Ma'am, I tried. You tell me Ma'am, what I did you tried. understand? Ma'am, we can speak all the vowels by holding our tongues. Now try to speak B, C, D, F, G, H, F, L, M, N. Try to speak those words holding your tongue. You don't have to write it anywhere, but this is to make you understand that what is the difference between a vowel sound and a consonant, so that if words like university come or words like honest come, they do not confuse you. Because the word university is starting with the word U. Although it is a vowel, but it does not give us a vowel sound. Similarly, Ma'am, yeah. the word honest starts with H, but H is silent, so it does not give the sound of her. मैम H को साइलेंट क्यों रखा हुआ है? बच्चे ये तो जिसने इंग्लिश बनाई है उससे पूछना पड़ेगा। वो यूनिवर्सल लॉ है कि वो साइलेंट होता है तो वो होता है। मैम हाँ जी मैम मैं ये पूछ रहा था मैम ए और एन में डिवीजन इसलिए हुई थी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के कारण मैम? नहीं, इसलिए नहीं हुई थी बेटा। मैम फिर क्यों हुई? अल्फाबेट में मैम और भी कोई वर्ड साइलेंट है? किस वर्ड में बेटा? मैम जैसे मतलब अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, मैम उनमें से एक तो H साइलेंट है, मैम और कोई भी वर्ड बच्चे साइलेंट है? एच हर जगह साइलेंट नहीं होता। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ऑनेस्ट एक वर्ड है जिसमें एच साइलेंट है। साइलेंट तो पी बहुत जगह होता है। अगर आप वर्ड देखो साइकियाट्रिस्ट, मैम जैसे लाइफ में के साइलेंट मैम साइकोलॉजी में भी पी साइलेंट होता है। हाँ मैं यही कह रही हूँ ना, पी बहुत जगह Ma'am, साइलेंट knife होता है। में भी K cycle. नाइट में के साइलेंट होता है। तो ये तो वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, मैम बहुत नो सारे में भी वर्ड्स। मैम नो नॉन में भी में भी पी साइलेंट होता है। Ma'am, नाइट non में में भी. No, non. नॉलेज में। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो हो गया किसमें साइलेंट होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि अपनी टंग होल्ड करके आप बी सी डी ई एफ जी एच ये बोलना, बोल के मैम ये देखो। बोल के देखा पर ये नहीं हुआ, पर तो वोवल्स ये वो इसीलिए उनकी बोल रही हूँ। pronunciation सही No, नहीं ठीक है, ma'am. यस अनन्या। Ma'am, on Yes, some Ananya, of the what do you want words. to say? Yes, मैम ma'am. टंग होल्ड You कर raised कर your मैम वो hand, भी Ananya. मैम वो भी ठीक मैम मतलब बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा क्या कह रहे हो बेटा? मैम हमने BCD भी अपनी टंग को होल्ड कर कर मैम बोला है, लेकिन मैम बात तो मैम ठीक आई है। मैम वाई भी हो रहा है मैम, होल्ड करके मैम वाई। नहीं हो पाएगा। मैम यस मैम मैम वो बोले जाते हैं बट उनकी pronunciation जैसे राइट होती है वो वैसे नहीं Pronunciation right होती। नहीं होती। यस मैम ई में ई की साउंड प्रॉपर आती है, ई में ई की साउंड प्रॉपर आती है, आई में आई की साउंड प्रॉपर आती है। ठीक है, इसी तरह जो मैम मैंने वर्ड बोला आपको यूनिवर्सिटी, तो जो वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें हम एक वावल तो यूज कर रहे हैं यू, तो रूल के अकॉर्डिंग तो एन आना चाहिए। मैंने आपको अभी कहा कि वावल्स कहाँ यूज होते हैं, एन कहाँ यूज होता है वावल्स के साथ। बट यूनिवर्सिटी है तो य की साउंड है, साउंड्स देखनी है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात की है। मैम हाँ जी मैम आप ना होल्ड कर दो तो मैम मतलब सभी बच्चों को मैम म्यूट कर दो, और उसके बाद जो मैम डाउट होगा वो बाद में पूछ लेंगे हम। मैम आप अपनी क्लास पूरी कर लो। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मैम प्रणव शर्मा। ठीक है थैंक यू।
अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, एंड वॉवल साउंड्स होती हैं the sounds that are used without making the use of our tongue. Similarly, now I'm going to tell you what are consonants. Consonants are all the English letters except the 5 vowels. They are the consonants. So A, E, I, O, U are vowel sounds and all others are consonants. B, C, D, F, G, H, L, everything is consonants. Now our concern, as we are doing articles, so we need to know where do we use a, where do we use an, and where do we use the. So the first form is the indefinite article, which is a and an. So now I will tell you where we are going to use a. A is used, but give me 2 minutes, then I will listen to you. Before words that do not start with the vowel sound. Now understand this very clearly, that A is used before words that do not start with the vowel sound. Here I have not written the word vowel, but I have written vowel sound. VOWEL, vowel sound. And Not a vowel. You will not understand that A is used before a thing that is starting without A, E, I, O, U. Anything that starts with A, E, I, or U and gives us and does not gives us the sound of a vowel, A will be used there. The second thing that you all must remember is, मैम आपकी हाँ मैम जी। वॉइस पीछे से मैम छोटी छोटी बच्चे मेरी पीछे वॉइस से बिल्कुल क्लियर है, आपके repeat होती इंटरनेट में है। प्रॉब्लम होगी। Yes, Ma'am, ma'am, your voice is Clear. मैम गूंज रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? Ma'am, your voice is Ma'am, clear. clear, My ma'am. voice is already very clear. Your voice is My clear. voice is very clear. My internet connection is very good. I am sitting in the capital of the country, जहाँ पे इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. So if there is a problem, it is with your connection. So if you are not able to hear what I am speaking, you are at least able to see what I am writing. Just read to it. And if you are not able to understand anything, you can ask it to me by the end of the session. मैम नो मैम किसी का ना माइक ऑन होता है मैम, फिर उसमें से मैम सबसे आती है ज्यादा मैम। तो दिव्यांशु आपका- आपका माइक कौन रहता है? आपसे ज्यादा तो कोई क्लास में बोलता ही नहीं है। आपको मैंने अभी बोला था, ट्राई टू लिसन, यू विल लर्न बेटर थिंग्स। आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, आप चैट में मेंशन करो, आई विल आंसर टू यू। So indefinite articles are a and an, and a is used before words that do not start with a vowel sound. Now we need to understand the difference between a vowel and a vowel sound. There are 5 vowels, namely A, E, I, O, and U. Written vowels are not pronounced with a vowel sound all the time. The pronunciations of these vowels differentiate according to the word. Like if we talk about
University. Honest. No, honest has. आपने जो Europe. यूनिवर्सिटी Europe. के पहले मैम जो आपने बताया मैम वो हिंदी में एक्सप्लेन करना है। बच्चे मैं सारा हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? मैम 1 हाँ 1, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ए कहाँ पे यूज होता है, ए वहां पे यूज होता है जिन वर्ड्स की साउंड जो है वो वॉवल साउंड नहीं है। वॉवल और वॉवल साउंड में फर्क है। आप लोगों ने आज तक पढ़े हैं 5 वॉवल्स। 5 वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई और यू। बट जो साउंड आती है वो नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी है तो उसमें ऊ की साउंड आए, नहीं आ रही। यूरोप है उसमें ऊ की साउंड आए, नहीं आ रही। 1 में ब की साउंड आ रही है, ओ की साउंड नहीं आ रही। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें साउंड जो है वो वॉवल साउंड नहीं होती है, डिस्पाइट वो लिखे वॉवल के साथ जाते हैं। उन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम सबके साथ एन नहीं यूज करते हैं, उन सबके साथ हम ए या द यूज करते हैं। मैम ए और द के बारे में बताना जो आपने बच्चे अभी द के बताया। बारे में अभी मैं बताऊंगी, अभी पहले मैं एन के बारे में बताऊंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, देन आई विल कम टू योर डाउट्स। अब अगर हम एन की बात करते हैं, एन कहाँ यूज होता है, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स that start with vowel sounds. Like अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट की, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है तो साउंड क्या आ रही है, अ क्या है, वॉवल है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह हम बात करें अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला क्या है, एन लगेगा मैम। एन लगेगा। लगेगा। देखो एक ही साउंड है। डिस्पाइट यू बीइंग अ वॉवल साउंड, हमने क्या देखा था यूनिवर्सिटी में एन नहीं लगा था, लेकिन अम्ब्रेला में यू की जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, इसलिए एन लगेगा। एप्पल के साथ क्या लगेगा, क्योंकि उसकी साउंड ए ठीक है। मैंगो के साथ क्या लगेगा, मैम ए मैम ए। चॉकलेट के साथ क्या लगेगा, मैम ए। वेरी गुड। मैम आई हैव डाउट। योर सेल्फ ऑन म्यूट। मैम यस प्रणव। मैम अम्ब्रेला में मैम अ की आवाज आ रही है, लेकिन अगर हम ए को टंग को होल्ड कर कर बोले तो मैम ए की आवाज आ रही है। बच्चे अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला मैम ए में यस मैम। और बच्चे वो एक ही बात होती है ना, साउंड जो है, इसलिए मैंने आपको बोला साउंड जो है, जो साउंड जो वर्ड अगर आप प्रोनाउंस करके देखना, अगर वो टंग पकड़ के आप बोल सकते हो तो वो इनडेफिनेटली एक वॉवल साउंड है। ओके मैम। ओके ओके मैम। हाँ जी, मैम प्लीज टेल अस फोनिक साउंड्स ऑफ वोवेल्स। मोर एग्जांपल्स ऑफ वॉवल्स। मैम फोनिक साउंड्स। You want to know the phonic sounds? Okay, I will tell you the phonic sounds. Ma'am, Yes. ma'am, its pronunciation is vowels or vowels? The correct pronunciation is vowels. But मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वॉवल बोलना शुरू कर दिया, और मैंने सोचा आपको मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो इसी चीज पे आप लोग 10-15 मिनट निकाल दोगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं, किसने बनाया था। यस
मैम मैम ए ई मैम Yes. मैम ए ई आई और यू को मैम इसलिए वोवल्स कहा गया है क्योंकि इसको हम टंग होल्ड कर कर इनकी हाँ आवाज बेटा, सेम क्योंकि आती है। देखो जब एक लैंग्वेज बनाई जाती है, ठीक है, आप इस तरह हाँ से जी। समझो, हिंदी और पंजाबी में मात्राएं हैं, मैम हाँ शब्द जी। अलग है, मात्राएं अलग है। इसी तरह से इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बना दिए गए। मैम हाँ जी, ओके मैम ये नीचे वाला मैम दिख नहीं रहा मैम। नीचे ऑनेस्ट कुछ है ही अम्ब्रेला नहीं, है पर कुछ नहीं है ही मैम, नहीं, ऑनेस्ट उसके नीचे कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है वो आप पढ़ रहे हो। मैम। मैम Excuse me, ma'am. यस, मैम यूनिवर्सिटी के साथ हाँ क्या लगेगा? बच्चे द लगेगा यूनिवर्सिटी के साथ। मैम बट मैम डेफिनेट है ऐसे ना लग बच्चे, सकता है। डेफिनेट है। Ma'am, हाँ जी, ma'am, but we say मैम कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है मैम। के बारे कोई में भी बताओ। यूनिवर्सिटी हो सकती है, तब अ लगेगा। say- अ या द कुछ भी लग सकता है, अगर डेफिनेट है तब द लगेगा, नहीं तो अ लगेगा। ma'am when they ask any name of university, ma'am, when we use the जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो फिर Yes, तो ma'am. पंजाब यूनिवर्सिटी लगेगा, क्योंकि that is a specific. यस द क्योंकि वो यूनिवर्सिटी specific है। इन सेक्टर 15, इस तरह से भी हो सकता है। मैम स्पेसिफिक क्या होता है? Ma'am, when the only university. नहीं बच्चे, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ यूनिवर्सिटी जब स्पेसिफाइड हो ना, जब रैंडम हो तब अ यूनिवर्सिटी हो सकता है। देयर इज अ मैम यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक क्या होता है? सुनो बेटा सुनो, Okay, ma'am. देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर माय हाउस, ठीक है, एक चीज हो गई ये। सेकंड चीज है द यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड नियर माय हाउस। दोनों में फर्क आया ना, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी है मेरे घर के पास, लेकिन एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है मेरे घर के पास, तो डेफिनेट हो जाता है, तब द यूज होता है। मैम दो कहाँ पर यूज होता है मैम, वो उसके बारे में बता दो। ठीक है जी, थैंक यू। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मेरे पास ना फ्रेश वीक की मैम इंग्लिश ग्रामर थी मैम, मैं उसके अंदर ना आर्टिकल्स पढ़ रही थी मैम, तो उसके अंदर ना वहाँ आया था डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, तो मैम वहाँ ना लिखा हुआ था द आर्टिकल ए इज यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज कांस्टेंट साउंड, तो मैम वहाँ उसके नीचे एग्जांपल्स दे रखी थी मैम, तो वहाँ था अ पेन, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी मैम, तो उसके साथ क्यों यू लगा था? बच्चे मैंने भी तो अभी यही बताया, देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर माय हाउस। जब रैंडम है, जब हमें पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तब द लगेगा। ओके मैम। मैम जब मतलब कि हमें पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है तब द लगेगा, अगर हमको नहीं पता कि उसका नाम क्या है तो ए लगेगा। हाँ, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, देखो सुनो, मेरे घर के पास एक यूनिवर्सिटी है, देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर माय हाउस। कोई भी यूनिवर्सिटी है, मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस इज नियर माय हाउस। अब मुझे पता है ना कि साइंस यूनिवर्सिटी है, तो मेरे घर के पास है। ओके मैम समझ आ गया। इसकी और कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हो चीज सकती हो है? मैम मैं यूनिवर्सिटी को छोड़कर और कोई एग्जांपल जहाँ पर ए और द का फर्क दिखे? जब हम आगे चलेंगे तब फर्क दिख जाएगा बेटा, पर आप लोग आगे जाने कहाँ देते हो। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, I want to ask that how to say school की छुट्टी हो गई है in English. आप बताओ, आपको क्या लगता है इसकी क्या इंग्लिश होगी? Ma'am, ma'am, in this sentence, is break off is correct or not? ब्रेक ऑफिस? स्कूल इज क्लोज्ड। Please break off now. नहीं नहीं, स्कूल इज क्लोज्ड। स्कूल इज क्लोज्ड। School is dismissed now is correct.
हाँ डिसमिस्ड आप बोल सकते हो। मैम break डिसमिस का off मतलब wrong है। from School is over now. Excuse Ma'am, me, is ma'am. break off wrong? मैम डिसमिस का मतलब तो कुछ और हुआ। हाँ डिसमिस का मतलब कुछ और हुआ, बट वो जिस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं वहां सही है। और ये भी बोल सकते हैं, आपने जो कहा स्कूल इज क्लोज्ड नाउ, वो भी ठीक है। Ma'am, is break off the correct? नहीं, Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. यस Ma'am, can we, ma'am, the class is going to over. Ma'am, can we join again? नहीं, the class, I will end up the class before that, don't worry. Okay, ma'am. So now we talk about the definite article, and there is only one definite article, which is the. Where is the used? The is used in front of a particular person or a thing. When you are talking to someone or you are writing someone, the person who is reading or the person who is listening to you can make out about which particular thing you are talking. Like, how did you do your English test? Okay, ma'am. How did you do Ma'am? your English test? Yes. Ma'am, I have a doubt. Yeah, tell me. Ma'am, there are two types of articles. Ma'am, what are their names? There are two types of articles, indefinite article and definite article. Indefinite article has Okay, ma'am. further two types, can I a tell? and definite Ma'am, the article के बारे में is बताना the. फिर। So there are, in total, there are 3 subtypes. मैम द के बारे में बताना फिर से। द बेटा पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के आगे यूज होता है जब कोई आपकी राइटिंग Ma'am, पढ़ रहा है या जब कोई आपसे बात कर रहा है। आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में, सामने वाले को पता होगा कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा रही है, इसलिए उसके साथ द लगेगा। मैम लविश के मैम ना माइक्रोफोन से मैम आपकी आवाज आती है मैम। लविश अपना माइक म्यूट कर दो। Ma'am, if the class is over, then we have to join. No, I The am class ending up the class, बच्चे. In the next class, I will let you know that where do we use articles with countable, how do we use with countable and non-countable nouns. I will let you know. I will take one more class of articles, and we Okay, will ma'am. wrap it up. Ma'am. It is not possible with all your doubts. It is not possible to finish it in just one class. Though it is a very simple topic, but I do understand that you do have doubts, and I don't want you people to keep thinking. That's why I have to answer everything that you ask. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am. Ma'am, the is not used before a name. No, it is not. Particular person or thing. It depends. You will not say the Megha or the Pratiksha. Ma'am. You will not say anything like that. मैम द उन चीजों के लिए भी यूज होता है जैसे पूरे वर्ल्ड में जो एक ही चीज होती है उसके जैसे। हाँ बिल्कुल यूनिक चीजों के लिए, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है बच्चों, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। ओके मैम, बाय मैम। I will let you know. Ma'am, bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.